good evening, ladies and gentlemen. Thank you for being patient, and our apologies for a little bit of delay. As you can see, a lot of people, so it took a little bit of time for you to let in. Welcome to the MMA International Partner Conference. It is hosted by the CEO of MMA Group of Companies, Mr. Nauri Dewan himself, who cannot wait to come down here on the stage and address and speak to all of you. But the reason we have organized this is so that he can be one-on-one with all the investors, all the partners. There will have been a lot of rumors, good things, bad things. Everyone is unsure what's happening with the company, what's happening, what's the future, if there is a future, if there is no future. All these questions will be asked and all these questions will be answered by Mr. Nauri Dewan himself. Just before I call him on the stage, a few things I would like to mention. That he really believes that his investors, all of you guys and his partners, are one big part of the family. And that is exactly why he's invited you here, all of you, to speak with you. Well, despite knowing all the consequences, he came back to the UAE and he started the work again, and he really believes in his work and the future of MMA Group of Companies. He also believes that his investors, you guys, trust in him, will be with him as he's been there for you. And we all know that how it works when all these things happen in any country. It's not just the UAE. People do not come back. People do not face the consequences. But as I said even before, he's the man of his words, and he really, really wants you guys to support him, and he should be there as well for you guys. Please put your hands together for the man I'm talking about, the CEO of MMA Group of Companies, Mr. Nauri Dewan. Nauri. Welcome on board, back after 3 years, 6 months. First of all, I want to apologize for the delay outside, and the 3 years, 6 month delay happened from our side and some, the legal issues that happened. Those things, actually I can't discuss here due to some restrictions. So when we're going to have a meeting one by one, we can discuss there. Why today I called you up, all guys here, to just tell you the real story and the real film. I heard a lot of rumors outside while I was inside trouble. Scammer, guys called me cheaters, Ponzi schemes, some Two Dharms newspaper called so many things without having any proof. So the first meeting we called here, just in 20 days I came outside, and I can assure you no one can do this, even from you guys. Just because I never cheated anyone and I never want to con anyone. If I would have to con anyone, I wouldn't come back to UAE. When I came UAE first day, when I went to police station, I knew that there is cases against me because I have lawyers and everything, but I came myself. Before coming, I even told you all guys that I'm coming before 17th of March. I emailed them and I came on 4th of March. When I reached the police station, I saw from some of our investors. Most of them was locals. I still remember their faces and name. When I reached inside the police station, they were standing. One of them is here. They were standing there, and this is, I don't want to take the back complaints. And I was like, why? And he answered me that you are here. If you want to cheat us, you wouldn't be here. And the guy over there, he said, no, this and that. He said, no, all of them, maybe 7 or 8 was right. So they said, no, we want to take the case back. I'm really thankful to you guys. They took complaints back later on as well. Special thanks to those, and special thanks to all of you guys, those who did the complaints. I just want to ensure you all that your investment are still intake and you will get the bounties on it as well. Before I say my word or give my words, I want to show you the real picture of what happened in past in 2012. And this picture was not from my side. A lot of you guys says as well, even the other group says that I make pictures in my home. That's not true. This is the international newspaper, the international market will say the words what I used to say on social media. And that will is going to be approved for that what I ever said. And I never lied to my investors. Yeah, that's true. I never tell the true story till today because that was not going to help me and going to you guys as well. But today I got a chance to tell you all the real story what happened at that time. I think most of you are Pakistani Indians and some are Arabs, and I can hope they can understand Urdu as well. Understand, right? Bit.
No, because it's better, because Hindi, Urdu I can explain very well. English, yeah, a little bit. Hindi is okay? So I will go with Hindi and Urdu, okay? सबसे पहले आज का एजेंडा जो हमारा है वो ओवरव्यूज़ पे है कि पास्ट में क्या हुआ, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या थी, चैरिटी इवेंट्स क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे लाइसेंसेस जो कि कहा गया कि है ही नहीं है. I can, there's a hard copies outside while you will finish your dinner, you can take with them and you can verify it, or even you can pass to those group as well, those who are saying there is no licenses and all bullshit. What happened exactly in 2012? Not to me, like me, a lot of others, but no one came back and stand in front of their investors, they just quit. I can guarantee you that. इस बात पे मैं आपको बेट भी कर सकता हूँ कि कोई वापस नहीं आया, ना इधर ना पूरी दुनिया में, सब ने बाय बाय अल्लाह हाफिज घर चले गए, क्योंकि कर नहीं सके. उसके बाद 2012 के बाद क्या हुआ, आप सब अफेक्टेड हुए, आप लोगों के जो भी स्टोरी है वो भी उसमें आफ्टर फैक्ट्स, लॉसेस, फ्यूचर प्लान्स आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ एमएमए आप सबको पता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज वी हैव टू डू दैट. एमएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज, देयर इज एमएमए फॉरेक्स, so it's called MMA Financial Investments. MMA Bank General Trading is there. MMA Machinery, MMA Advertisement, MMA News Channel, MMA Connects, MMA Welfare, MMA Airline and MMA Productions. बहुत सी कंपनी को कहा गया कि बोगस कंपनीज हैं, हमारे ही कुछ फैमिली मेंबर्स ने, उन सब का प्रूफ देता हूँ अभी कि कोई कंपनी बोगस नहीं थी, सब कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी थी, कुछ यहाँ से, कुछ आउट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज से. यहाँ पे कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाती है, रजिस्टर्ड वो कोई जाके एक्शन साइंस में भी होती हैं, या कोई क्या नाम है, like some offshore companies होती हैं. So we'll show you all the licenses as well. Key sectors of MMA was finance, like you guys, productions, events, marketing, industrial equipments, construction and all. Those was the key sectors. We was operating from 10 different countries around the world at that time. But right now, unfortunately, we are just unfortunately, because this is the base of MMA was before, so we just opened our new office, like same office, reopened it in UAE. MMA fact sheet is in front of you guys. MMA group was present, as I said before, in 12 countries, different countries, with 10,000 registered clients. 10,000 registered clients doesn't mean all kinds of forex, like all other was like heavy equipment, someone was like import-export trading, someone was in generator tradings. Like we had a 10,000 registered client portfolio at that time, and alhamdulillah still we just lost maybe not more than 6% clients. Even in 2012, the crisis started in our business, not in our business, in worldwide, that business, from January till December. I will show you the charts, and a lot of you guys are trading online. I know before even and now even. So they know exactly what happened in 2012, and I will give you the story of that time, what happened and why we got stuck. But still, we was paying the profit till our investment till October. Even 2012, when our office was being forced to shut down, we was paying profit to some of manual customers, some of others, we was paying. So we never run. Those who were saying कि भाग गए, हम कभी भागे नहीं. हम उस दिन भी अपने ऑफिस में बैठ के हमारा स्टाफ आप लोगों की खिदमत कर रहा था, मगर कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ने उठ के उसको बंद करवाने की कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बाद हमने दोबारा रीओपन करवा दिया. हमने कभी हार नहीं मानी, कभी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमने कभी चोरी नहीं की. जब आप अपने ज़मीर से मुतमईन होगे कि आपका ज़मीर क्या कहता है, आप कभी पीछे नहीं हटोगे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं थी जो आपको 180% पर ईयर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देती थी. हम देते थे 10 to 15%, और शायद यही हमारी गलती थी. दैट वाज आवर मिस्टेक. इसी को उसको पॉन्जी स्कीम कह दिया लोगों ने. It doesn't work like that. अगर आप लोगों ने उसके बाद, मुझे पता सब ने ट्राई तो किया होगा फॉरेक्स, जब हम लोग फंसे, तो यू नो दैट कि फॉरेक्स में आप एक दिन में 400% भी बना सकते हो. एक दिन तो बड़ा, एक घंटे में भी. अगर किसी को सीखना हो, मतलब कभी एक्सपीरियंस करना हो, तो कम इन माय ऑफिस, आई विल टीच देम और आई विल मेक देम इन फ्रंट ऑफ देम. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अजीब न्यूज़ दूंगा, शायद आप लोगों को शॉक भी करेगा. आप जितने भी यूएई के क्लाइंट्स हैं ना, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन $10 million. आप जितने बैठे हुए हैं और जो कंप्लेंट्स भी करते हैं,
आप लोग कैलकुलेशन कर लें, बेशक $10 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है आप लोगों की। और MMA के एक्सपेंसेस ईयरली इससे डबल थे, और उसके आप लोगों को भी अंदाजा है, अभी आपको प्रूफ्स भी दूंगा। सो जो लोग ये कहते थे कि MMA ने हमारा पैसा उठा के हमें दे दिया, इट्स टोटली बुलशिट। किसी का पैसा उठा के किसी को नहीं दिया, ना ऐसे होता है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो अखबार भी अपने ऑफिस में नहीं लगा के बैठते कि अखबार के भी पैसे चले गए तो हम अपने क्लाइंट को वापस नहीं कर पाएंगे। तो MMA ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं आपको गारंटी के साथ श्योर कर सकता हूँ, आप सब अभी कैलकुलेशन करवा दें, $10 मिलियन से किसी को ऊपर नहीं बनेगा। देयर इज नो मोर देन इन्वेस्टमेंट मोर देन $10 मिलियन जो MMA के पास थी यूएई से। हमारे और क्लाइंट्स हैं जो कभी सीन पे नहीं आए, जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, वो कभी सीन पे नहीं आए और आज भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बिलीव करें, मैं 3 साल 6 महीने काट के आया डिटेंशन सेंटर में, कभी उनका रिप्लाई मैसेज कुछ भी नहीं आया। एक दिन मैंने उनको ईमेल्स की और आई जस्ट सेड देम sorry for the delays and everything, and just one kind reply from 2 guys, we talk when you are free. And lot of you guys supported me at that time. I'm really appreciating that and thanks you. So ये चीज़ जो आप लोगों को माइंड में डाली गई कि MMA ने आप ही का पैसा आपको उठा दिया, ये बिल्कुल झूठ है। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आप लोग कैलकुलेशन आपस में बैठ के कर भी सकते हो। चाहिए तो मैं आप ऑफिस आए, मैं आप लोगों को नाम के बगैर क्लाइंटों का नाम, नंबर और लिस्ट, उनकी अमाउंट दे दूंगा। कांट गिव यू द क्लाइंट नेम्स ड्यू टू सम रीजन, बट आप लोगों ने आपस में शेयर कर ली हो तो यू नो वेरी वेल। MMA के एक्सपेंसेस, जो MMA उस वक्त अपने एक्सपेंस करता था, जिसको लिया गया कि क्लाइंट्स के पैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है, और फिर क्लाइंट के पैसे यूज किया तो क्लाइंट को वापस कैसे किया जाता है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1.5-2 साल भी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट लिया है, बहुत से। आई नो वन गाय, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम इज मोहम्मद केदी, इज लोकल गाय, ठीक है। ही वाज द सेकंड इन्वेस्टर, बिकॉज फर्स्ट इन्वेस्टर इन आवर फर्म इन यूएई वाज माय मामू, मेरी अम्मी का सगा भाई, ठीक है, और दूसरा मोहम्मद केडी। 2-2.5 साल उसने प्रॉफिट लिया और कई लोगों ने लिया, किसी ने भी आप मतलब बहुत से लोगों ने लिया और बहुत कम से नहीं मिला। MMA की टीवी एडवर्टाइजमेंट जो आप सब ने देखी होगी, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियंस and Arabs as well, $4 million with Bloomberg, Sony, ZTV, Summer TV, Aaj TV, PTV News, Dawn, and some other channels as well, C42 in Pakistan. 10 Sports, $1 million per year, Bloomberg, $1 million per year. You can check with them. आप लोग तो माशाल्लाह स्विट्जरलैंड तक मेरी कंपनी अकाउंट को जाके ब्लॉक करवा दिया आप लोगों ने, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो नहीं आप लोगों से, तो यू कैन चेक विद देम। एंड आई वुड प्राउड टू से कि किसी भी ये जो आपको मैं फिगर्स बताऊंगा, किसी भी कंपनी का $1 MMA ने नहीं देना, क्योंकि MMA ने कभी किसी को चेक इशू नहीं किया। वी ऑलवेज पे अप फ्रंट, और अगर मैं अप फ्रंट पे करके एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ तो मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे पाता। कि आप लोग भी इतनी कैलकुलेशन सब समझती है। रेडियो एडवर्टाइजमेंट इन यूएई ऑल ओवर द वर्ल्ड $2 मिलियन, यू कैन चेक। बल्कि आप लोगों ने तो कॉल्स भी किए लोगों ने, बल्कि आई डोंट नो आपने किए किसी ने, लोगों ने तो रेडियो स्टेशन पे कॉल किया, आप इनका ऐड क्यों चला रहे हैं, ये तो पॉन्जी स्कीम है, बंद हो गई है, या आप अभी भी इनका ऐड चला रहे हैं। तो उनको रिप्लाई मिला कि हमें ऑलरेडी पेमेंट हुई है एडवांस, तो हम इनका ऐड रोक नहीं सकते। मैंने आपको गारंटी दी है, यू कैन श्योर चेक विद एनीवन, जो भी पेमेंट्स मैं आपको शो कराऊंगा ये ऑलरेडी अप फ्रंट पेड्स हैं, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन से ऊपर नहीं है। अगर हो, आई एम स्टिल हियर, यू कैन कम एंड से आपने झूठ बोला था 400 बंदे के सामने खड़े होकर। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे यूएई में, पाकिस्तान में सबसे पहले माय लव न्यूज़पेपर, आई डोंट इवन टेक देम, ठीक है, खलीज टाइम्स, गल्फ टुडे, एंड पाकिस्तान नोवा गल्फ, सॉरी लॉट ऑफ इन पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान में दुनिया, शर्क, हेयर इन शर्क, लॉट ऑफ अदर्स, $1 मिलियन एवरी ईयर हम पे करते थे उनको। ये तो हो गया हमारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, जो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट के 90% तो पहुंच ही गया, $8 मिलियन। और ये आप लोग चेक भी करवा सकते हो कभी भी, हमारे ऑफिस आते हैं हम तो चेक करवा देंगे आपको। चैरिटी और इवेंट्स जो MMA करती थी अपने क्लाइंट्स के लिए, इवेंट्स यहाँ पर यूएई में और ऑल ओवर द जो भी हम लोग पाकिस्तान, इस्लामाबाद कहीं पे भी करते थे अपने क्लाइंट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसका हम लोग ईयरली $2 मिलियन सिर्फ इवेंट्स और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, फुटबॉल स्पॉन्सरशिप, वॉलीबॉल स्पॉन्सरशिप, हॉकी स्पॉन्सरशिप हम लगाते थे। आप सब इन चीज़ों की गुआ भी हो, आप लोगों ने वहीं से कंपनी का नाम सुना था, एंड यू केम अराउंड। गाला डिनर्स फॉर इन्वेस्टर, कंसर्ट्स, क्रिकेट मैचेस,
कॉमेडी शोज इनसाइड यूएई। $2 मिलियन हमारा वो प्रोजेक्ट था। तो आप लोगों के पैसे तो यहाँ पूरे हो गए भाई। जब मैंने आप लोगों के पैसे यहाँ पूरे कर दिए तो मैं आप लोगों को कहाँ से देता था? घर से लाके। मेरे पास तो इतने नहीं है। इसका मतलब ये कि आप ही के पैसे से कमा के आपको देता था। किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अभी भी कोई कहता है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, ऑफिस में आ जाए, यहाँ पे स्टेज पे आ जाए, मैं उसके साथ यहाँ पे बैठ के हम लोग बात करते हैं, बताएं कहाँ पे फ्रॉड हुआ, किसके साथ हुआ। सिर्फ 2 महीने मांगे थे भाई, सबसे 2 महीने टाइम दे दो, मैं पैसे देता हूँ। मेल्स भी, क्या आप सबके पास मेल्स अभी भी पड़ी है? 2 महीने हर कंपनी को मिलता है यार, किस कंपनी को नुकसान नहीं होता। अब हर कंपनी को नुकसान हुआ, स्कैमर हो गया, पॉन्जी स्कीम होगी, ऐसा नहीं होता। 2 महीने मांगे, यहां से पाकिस्तान गया 2 दिन के लिए, काम के लिए गया, पाकिस्तान गया, वहां पे भी नया ऑफिस खोला लाहौर में। कौन कंपनी फ्रॉड करके भाई नया ऑफिस खोलती है किसी और कंट्री में जाके सेम नेम से, और बंदा ऑफिस अपने में बैठा हुआ इस्लामाबाद। फिर वहां पे अपने इन्वेस्टर्स को बुलाया, मीटिंग करवाई, वहां पर नहीं आ सकते सब, भरोसा वक्त मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था, बुलाया वहां पर, भाई आओ देखो क्या स्टोरी है, क्या सीन है। लाहौर में किसी होटल में इनवाइट किया, लोग आए भी, कुछ नहीं आ सके, ड्यू अदर नेशनल से नहीं आ पाए, जो थे वो आए, समझाया उनको वहां पर भी। जो वहां पर आए वहां पर तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, सब कुछ। यहाँ पर जब इशू बना, सबसे पहले उन्हीं में से एक था जिसने जाके उधर कस्में पुराने, भाई हम आपके साथ, भाई साथ, उसके अलावा हमारे से भी आप इन्वेस्टमेंट और ले लें। मुझे आप ये बताएं, कोई भी कंपनी क्राइसिस में हो, वो अपने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मांगती है, हमने मांगा? किसी से नहीं मांगा। क्यों? हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं मांगा। हम उसी पैसे को दोबारा यूटिलाइज करना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों का पैसा हमारा बैकबोन था। मैं नहीं कहता कि 10 मिलियन आप लोगों का तो इट्स नथिंग, बट स्टिल आप लोगों का पैसा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं हमारी बैकबोन थी। सब कंपनियां पैसों से नहीं चलती। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज में मेरा बिलीव है, हर चीज में दुआ का असर ज्यादा होता है, और उसका प्यार, आप कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हो। और हमारी कंपनी से वैसे चलती थी और हम देते थे प्रॉफिट बना बना के। बाद में कुछ हमारे अपने भी, वो हमारी इनको भी मसाला कुत्ती चोरा में मिल गई, तो अपने भी मिल गए, तो उन्होंने जाकर के कुछ और ही सीन बना दिया। आज वो यहाँ पर नहीं नजर आएंगे आपको। एक बंदे का तो मुझे स्टोरी याद है, ही कॉल्ड अ मीटिंग इन सम कॉल्ड होटल, क्या नाम है वो, जिस चौधरी, मेरा 50 मिलियन 50 करोड़, आप इन्वेस्टर्स को बुलाया एक होटल के बाहर, बोला मेरा 50 करोड़ रुपया मैं मिलूँ। अरे भाई उसका अपना वीजा ही नहीं है यूएई का, खाली वाली घूम रहा है। चौधरी क्या, चौधरी मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 4 बंदे बैठाए हुए हैं साथ, और कह रहा है मेरा 50 करोड़ रुपया देना है। इन्वेस्टर सारे पहुंचे हुए उधर भी। अरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ दफ्तर खोला हुआ है ना, यहाँ पर आओ। आपको 4 तारीख को पकड़ा गया, 9 तारीख को बुला के आपको एक्सप्लेन किया, भाई सब्र करें, सबको सब कुछ मिलेगा। उस दिन जी सब ने सब कुछ ही गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन आंसर का सेशन ही नहीं हो सका, मुझे भी मजबूरन फोन बंद करना पड़ा। आई कांट लेट माई स्टाफ टू बी अब्यूज्ड एवरी डे, एवरी आवर। उसके अलावा ये चैरिटीज पे आए, एमएमए एम्बुलेंस केपीके में एम्बुलेंस चलाती थी, शायद यहाँ पे केपीके के लोगों के अहमदाबाद के भी हैं। फ्री सर्विस, जस्ट कॉल एंड गेट योर एम्बुलेंस ऑन योर डोर विदाउट पेइंग सिंगल पेनी। फ्री नहीं चलती, उसमें काफी एक्सपेंस आते हैं। सीरिया में चैरिटी की, लोगों ने बड़ी मुझे गालियां दी कि यार कि तुमने तो सीरिया में चैरिटी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, हमारा पैसा नहीं देते। अरे भाई वो काम हो रहा है, वो पैसा कहीं और से आता है, वो जाता कहीं और है, वो आप लोगों का पैसा नहीं। बर्मा में दैट टाइम वाज कंपनी वेरी गुड कंडीशन, $1 मिलियन हम लोगों ने दिया। पाकिस्तान फ्लड रिलीफ में $1 मिलियन दिया। बिल्डिंग ग्रेवयार्ड फॉर कैथलिक्स इन पाकिस्तान, building park for family kids in Pakistan, free education for 500 kids in Pakistan. Most of you knows because KPK के हैं यहाँ पर। Free food distribution while I was inside. फिर भी हमारा कैंपेन फूड डिस्ट्रीब्यूशन में चलता रहा। ये नहीं था कि आप लोगों के पैसे चला रहा था, था पैसा, मगर किसी और सोर्स से आता था, उसी सोर्स में जाना था, वो मैं आपको नहीं दे सकता था, और मैं दे नहीं पा रहा था। आप लोगों ने मुझे सही, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे अंदर से बैठ के। आप मुझे बताएं, मैं अंदर वो केसेस लड़ूं या मेरे ये लड़के आप लोगों की मतलब लोगों की गालियां सुने या पैसा बांटे? कैसे बांटे, कैसे हो सकता है ये काम? एक तरफ लीगल इश्यूज, दूसरी तरफ स्टाफ को भगाया जा रहा है, गालियां देके। कौन सुनेगा गालियां? 2 दिन 4 दिन 10 दिन
एक दिन तो उसकी खैर की यार भाड़ में मैं छोड़ता हूँ काम, फिर भी मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा रहा, एंड तक सुनते रहे। पर अनफॉर्चुनेटली हमें आखिर में आके अपना ऑफिस बंद करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। ये आ गया जी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोगस कंपनीज, ना लाइसेंस है ना कुछ है, ऐसे ही काम चलाते रहे। ठीक है, सब कंपनी के लाइसेंसेज हैं, हार्ड कॉपीज जिसको चाहिए हो दे कैन कलेक्ट इट हार्ड कॉपी वेरी इजीली। सबसे पहले हैवी इक्विपमेंट्स, एमएमए एडवर्टाइजमेंट लाइसेंस, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, एमएमए सर्टिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान, एमएमए फ्रॉम रासल खैमा, हियर इन रासल खैमा उसका लाइसेंस, एक्टिविटीज उसके अंदर एक्टिविटीज भी हैं, एमएमए एयरलाइन ट्रेन वी वर रजिस्टर्ड इन दुबई, जो उसकी रसीद है, एमएमए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका उसकी रसीद मतलब उसका लाइसेंस, अदर कंपनीज लाइक एमएमए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन दुबई रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस में थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी 2012 में, एमएमए एक्सचेंज या दीज टूज वो ऑलरेडी एमएमए एयरलाइन को उसमें आ चुका है पहले। ये तीन कंपनी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में थी, पेड हुआ ये उनकी पेमेंट वाउचर्स है। वी आर लिविंग इन दुबई, आप कल बल्कि अभी यहाँ से अपने मोबाइल से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं सारे लाइसेंसेस। एमएमए बैंक जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस इसमें नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास उसकी मतलब नहीं थी कॉपी, बिकॉज उठा लिया गया सब, काफ़ी डेटा हमारे से मिस हुआ है। ऑन टॉप ऑफ इट मलिक मुश्ताक अवान एलएलसी की भी नहीं, क्योंकि उसका भी हमारा लाइसेंस उठाया हुआ था तो हमारे नहीं मिल सका फीडबैक, क्योंकि टाइम बहुत छोटा था। अब आते हैं हम जो लॉसेज हुए, तो ये 2000 एक्चुअली द रियल स्टोरी, पैसा लेकर भाग गए, इट्स नॉर्मल थिंग, मेरे पैसे होते मैं भी कहता भाग गया यार चोर है, मगर हर बंदा चोर नहीं होता। शायद आप लोग ट्रेडिंग समझते होंगे, कुछ लोग तो समझ नहीं होंगे ऑफकोर्स। मार्च 2012 गोल्ड की प्राइसेस थी $1800। अगर जो समझते हैं उनको पता है, अलग चार्ट है, यू कैन गूगल इट टुडे टुमारो, उसमें हमने लिखा भी है कौन सी वेबसाइट है, किटको से आप निकाल सकते हैं। जुलाई तक 300 पॉइंट गिरा, 300 पॉइंट 2012 में गिरा, मतलब जो समझते हैं उनको पता है बिग आप कह सकते हैं हेज आया उसके अंदर, गिरना उसको हुआ। फिर देन सिल्वर $12 चलने में कम से कम 2 साल लगा था सिल्वर, मार्च से लेके अगस्त तक 5 महीनों में $12 गिर गया, फ्रॉम 38 टू 26। देन देयर इज अ यूरो यूएसडी चार्ट, ऐसे काफ़ी चार्ट्स हैं, वी कांट पुट ऑल ऑफ देम बिकॉज इतना टाइम नहीं है। 500 पॉइंट फ्रॉम जुलाई टिल अक्टूबर, 500 पॉइंट गिरा। ये ऐसे नहीं गिरे, ये हकीकत में लॉस होना नहीं था, इसको कहते हैं इन हाउस ट्रेडिंग। इन हाउस ट्रेडिंग मेजर बैंक्स ने 2012 में, मेजर बैंक्स ने और मेजर इंस्टीट्यूशंस ने 2012 में इन हाउस ट्रेडिंग की, मार्केट को मैनिपुलेट किया खुद। सपोज हम लोगों ने अगर $38 में अपनी पर्सन बता देता हूँ कि लिया हुआ है सिल्वर, और हमारी इसमें 50 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो उस बैंक ने क्या किया, उसको खुद ही मैनिपुलेट करके लाया $26 पर, $12 की उसमें उसने मैनिपुलेशन की। ऐसे कई बैंक्स ने 2012 में किया, जो मेजर इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड डिड दिस हाउस ट्रेडिंग। उसके बाद काफ़ी अरेस्ट भी हुए, 2013 में अरेस्ट हुए, 14 में अरेस्ट हुए, 15 तक अरेस्ट चलते रहे इन सब के। और 2015 में यूएस रेगुलेशंस ने जजमेंट दी कि जिन बैंकों ने ये काम किया है वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करें, और उनमें हम भी एक हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ। उसमें मतलब हमारे भी पैसे उधर से वापस मिलने ही मिलेंगे, वो पैसे हमें भी मिलने थे, मगर अभी हमें डिले हो गया, क्योंकि मैं तो अंदर खुद दाल खा रहा था तो नहीं मिल सके, इंशाल्लाह मिलेंगे जरूर। ड्यू टू दिस, ये जो इन हाउस ट्रेडिंग हुई है ना, इन हाउस ट्रेडिंग की वजह से एमएमए को $200 मिलियन का उस वक्त लॉस हुआ एक साल में। और 200 मिलियन डजंट मीन 200 मिलियन। फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग्स में आपको हर बैंक, हर इंस्टीट्यूशन लेवरेज देता है। लेवरेज मीन आपका $1 $300 बनता है। दिस विल इंक्रीज योर प्रॉफिट रेशियो एंड ऑल्सो डिक्रीज योर रिस्क, ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लॉस। तो आप इस 200 मिलियन का मतलब 200 मिलियन नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय करें तो आपको पता चल जाएगा, मतलब $1.8 बिलियन बन जाएगा।
ये जो हमें लॉस हुआ था उस वक्त, मगर हमारी रियल मनी 200 मिलियन थी। एज पर द गेम, एज पर द प्ले, इट्स जस्ट $200 मिलियन वी हैड लॉस्ट रियल। कल ऑफिस आ जाए, वी कैन प्रोवाइड यू डॉक्यूमेंट्स, नो प्रॉब्लम। इन सब को एंथेंटिकेट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ये मेरे घर की न्यूज़पेपर्स नहीं है जो लोग कहते हैं कि वो घर में बनाते हैं न्यूज़। वन इज CNN, वन इज इंडेप्थ, वन इज फाइनेंशियल टाइम्स एंड वन इज UK टाइम। ये उन सब की हैं कि हेज फंड्स में क्या हुआ 2012 में, सारों की न्यूज़पेपर है, लाइक सबकी कटिंग्स आप लोगों को आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगी कि 2012 में एग्जैक्टली कैसे मार्केट क्रैश की गई, हुई नहीं की गई, और जिसकी वजह से हम भी डूबे और मेरे साथ वाले काफ़ी डूबे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा खड़े हैं यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल योर प्रेयर्स, और बाकी कोई नहीं है। और कभी भी कोई स्कैमर को सामने नहीं आता, और कोई कंपनी लॉस करे वापस नहीं आती, बहुत कम होता है ऐसे। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुआ, जो हमें लॉसेज हो गए, ठीक है, लोगों ने बना ली स्टोरीज, जो बनानी हर बंदा बनाता है, मैं भी बनाता है, सो इट्स नॉट हार्श फीलिंग फॉर दैट, बट स्टिल लगती है, यू नो। अगर आप कहीं जाकर ना अपनी FDC खोल दो बैंक में ना, तो आपको मैक्सिमम 4% मिलेगा, 5% मिल जाएगा। 10% के लिए आपको 4 साल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब आपको जाके 10% मिलेगा। और अगर आप 1 महीने में आपको 10% देती हो, समझो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट से 4 साल आपको वेट करना पड़ता है उतना प्रॉफिट लेने के लिए जो आपको 1 महीने में मिल चुका है। इस वजह से लगती है, हकीकत लगती है। 2012 में मोस्ट कंपनीज इंक्लूडिंग MMA went into loss due to house trading. December 2000, despite bad condition around the world, we were still paying. मैं ऑलरेडी बोल चुका, हम पे कर रहे थे, हमने रोका, फिर भी कुछ ना कुछ दे रहे थे, जैसे आते थे कमाते थे, कहीं से आते थे देते थे, कहीं से। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था, अपने हमारे मैनुअल क्लाइंट्स को हम प्रॉफिट दे रहे थे, जो बनता था दे रहे थे। मैं पाकिस्तान चला गया था भाई, क्यों दे रहा, पागल हूँ, पैसे मुझे पसंद नहीं, सबको अच्छे लगते, मैं फिर भी दे रहा था। 2013 में आया वापस, पता होने के बावजूद केसेस थे, खुद आया फेस करने के लिए, पकड़ा गया, 3 साल 6 महीने मज़े में गुजारे। आप लोग कहते हो ना, हमने वेट किया, थैंक यू फॉर योर वेट, आप लोगों ने वेट किया, मैंने सफ़र किया, एक एक घंटा, एक एक दिन, स्पेशली वो टाइम जो मेरी माँ मेरा बाप वेंटिलेटर पे बैठे रहे, वेंटिलेटर पे, कसम से जब अपनी माँ को फ़ोन करता, एक ही सवाल, कब आ रहा है, जवाब कुछ भी नहीं। मुझे पता हो सकता है कि काफ़ी लोगों की पेरेंट्स की, अल्लाह ना करे किसी की हो ना हो, सबकी प्रॉब्लम्स थी, मगर जब भी कॉल की ना तो एक ही सवाल कि कब आ रहा है, और जवाब कुछ भी नहीं। पूछते पूछते मर गए। 6 महीने बाद अबू भी फोत हो गए। तो आप लोग वेट कर रहे थे, मैं सफ़र कर रहा था अंदर, एक एक मिनट, एक एक घंटा, और मैं इस वजह से सफ़र कर रहा था कि आप जैसे 500-700 बंदे या 2000 बंदे इधर UAE के और बाकी मिलाकर भी मेरे शोल्डर पर उनकी जिम्मेदारियां थी, हक था उनका मेरे पास। आप बिलीव करो, रात को नींद नहीं आती थी। अब तो थोड़ी क्रीम मेकअप लगाया हुआ, आपको मेरी आंखें और नजर आ रही हैं, कभी रील में देखिएगा फुल ब्लैक है, सोया नहीं कई दिन, इस वजह से, बिकॉज आप लोगों की वजह से, यार इनका हक है कि मर गया कौन देगा। कसम उठा के कहता हूँ कि सिर्फ इस वजह से कई दिन सोया नहीं पाया, सो नहीं पाया। और जब मैं कई पेज पर अपने मैसेज पढ़ता हूँ, गालियाँ, फिर वो गुस्सा है, यार मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या पड़ती है आगे से, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 2013 में हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर को बुलाया 9th ऑफ मार्च को एक्सप्लेन करने के लिए द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड फ्यूचर एग्रीमेंट्स, बट वो ऐसे हो कुछ नहीं पाया। 2013 में ग्रुप ऑफ सम कुछ लोगों ने 2-3 शुरू हुए, कारवां बन गए उनके साथ भी, इश्यूज बनाए, काफ़ी लंबा थोड़ा खींचा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मैं बोल नहीं सकता कि हुआ क्या, मगर कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने कहा ना 25 साल के, लोगों ने कहा ये बस अंदर गया, कभी बाहर नहीं निकलेगा, मर गया। मगर मैं हमेशा कहता था मैं आऊँगा, क्यों, मुझे पता था कि क्या होना है, कैसे होना है। सब लोगों ने सोचा होगा, आप लोग आते तो भूल भी गए, पैसा गया बस वो गया अंदर, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल की सेंटेंस हो गई। एक अखबार में तो 35 साल की सेंटेंस लिखी मुझे, जबकि मैं सेंटेंस ही नहीं था। पता नहीं न्यूज़ कहाँ से लाते हैं लोग, घर पे बैठ के, मेरी तरह घर पे बैठ के बनाते हैं। 2013 में हमारा ऑफिस क्लोज किया गया, आपको पता है। 2012 में दिसंबर में हम लोगों ने 1 महीने बाद दोबारा खोला। समझ लो लोगों को ये भी कहा था, यार बंद किया क्यों खोला इन्होंने, नहीं खोलते ना। 2015 तक हमारा ऑफिस एक्टिव था,
1 स्टाफ था, 2 था, 5 था, मगर था सितंबर 2015 तक। उसके बाद हम लोग नहीं चला पाए, हमने कहा छोड़ना पड़ा ड्यू टू सो मेनी अदर इश्यूज। 2016 9 मई को मैं बाहर निकला रात को 8:30 बजे, और अराउंड 12 बजे आप सबको मैंने मैसेज भेज दिया कि मैं आ गया। नहीं भेजता तो शायद 1 महीने और किसी को नहीं पता चलना था। यहाँ कभी कोई बिस्केट जाता तो कभी कोई अबीर जाता, कभी कोई शारजा जाता, पर ऐसा मैंने सोचा नहीं, ना मैंने कभी सोचा था। खुद बताया सबको कि मैं आ गया हूँ, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, हक है, इन्वेस्टमेंट्स से ज़्यादा हक है, वो मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा जो फॉरेक्स की मार्केट में जो लॉस हुआ वो तो हुआ, ये जो ग्रुप ने बना के इशू बनाया ना, इसके अलावा जो मुझे लॉस हुआ वो मैं बताऊँ आपको, आप लोगों को पता नहीं है शायद सबको। खासतौर पे ये अरब जो ग्रुप है, इन्होंने काफ़ी मदद भी की उस दौरान जाके हमें, मगर नहीं हो सका कुछ भी। 30 मिलियन दिरहम्स की एग्जैक्ट मेरी इक्विपमेंट्स उठाई गई मेरे ऑफिस से ड्यू टू वन, मेरे पीआरओ के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। 30 मिलियन दिरहम्स अराउंड, वो आप लोगों का पैसा था, सब डूब गया। तो शारजा वो आप लोगों का पैसा था, वो डूब गया भाई, ठीक है। वो उधर से उठाएगी, ठीक है। ये लोग जो हैं बीच में बैठे हुए, इन लोगों ने जाके पुलिस में भी भागे, कोर्ट भी भागे, मेरे लॉयर भी भागे, पर कुछ ना हो सका। मेरे शायद बैड पैच था मेरी लाइफ का। 30 मिलियन दिरहम्स, और आप लोगों ने यार्ड्स देखी हुई हैं, कई तो उधर बाहर भी खड़े, जब उठा रहे थे मशीन तो मैसेज कर रहे थे उठा रहे, मलवारी अरशद यार। देन माई ओन सम कार्स अराउंड 5 मिलियन दिरहम्स की, वो भी गई अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरे नसीब में नहीं थी। बाकी मेरी जो कार थी वो तो चलो मेरी अपनी थी, नो प्रॉब्लम। ये पर्सनल लॉस, गाड़ियाँ भी रिकवर कर लूँगा, सब कुछ आप लोगों का पैसा भी वापस होना ही होना, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बिजनेस भी दोबारा शुरू कर दूँगा, नॉट बिन लॉन्ग टाइम। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आने लगे। लोगों ने कहा मैं हमारी बदुआएं लग गई, अरे भाई सब ने मरना है, मैंने मरना, शायद यही में मर जाऊँ, क्या बदुआएं लग गई, कोई गलत बदुआएं लगती हैं अगर आप गलत हो। मैं तो कभी गलत ही नहीं था, बदुआ किस बात की। वो फोत हुए, उस पर भी ड्रामा बनाया इन्होंने, हमारी बदुआएं, हमारा ये। अरे तुम कौन से पीर हो या आसमान से उतरे हो, हर बंदे ने मरना है। सॉरी टू यूज वन वर्ड, एक लड़के, एक इन्वेस्टर का बेटा फोत हो गया, अल्लाह से जन्नत में जगह दी, अखबार में आ गया ड्यू टू एमएम में बच्चा फोत हो गया। सुना पढ़ा, सोच लो, उसके बाप को मैसेज किया फेसबुक पे, यार इसने सुना सॉरी, और तुमने तो मेरा नाम लगा दिया। उसने कहा भाई मैंने नहीं लगाया ना, मैंने आप पे केस नहीं किया। उस बंदे ने केस नहीं किया तो मेरा नाम कहाँ अखबार में देगा। उस बंदे ने हमारे पे केस नहीं किया, मुझे उसका नाम जेल से निकल गया। वो आज भी हमारा इन्वेस्टर है, उसको पैसे मिलेंगे वापस। उस बेचारे के बच्चे को बीमारी थी पहले से, आप बचपन से, फोत होगा, मेरी क्या गलती है भाई। मेरे माँ बाप फोत हो गए, मैं कहूँ आप सब वजह से फोत हो गए, टेंशन लेके मर गए। सब ने मरना है, मैंने भी मरना है, सब ने मरना है। उसको भी एक अजीब सीन बनाया कि यार हमारी बददुआएं असर कर रही, बददुआएं असर करती ना तो मैं 50 साल बाहर नहीं निकलता। मेरे भाई को किडनैप कर लिया एक इन्वेस्टर ने, शायद उसके कुछ दोस्त यहाँ पे भी होंगे। उसने सोचा किडनैप करूंगा पैसे मिल जाएंगे, पहले दिन से बोला है पैसे तब तक नहीं दूंगा जब तक बाहर निकलूंगा। मैंने 2 साल हो गए अपने भाई से बात नहीं की, मुझे नहीं पता जिंदा है मर गया है कैसा है। 2 साल, और कसम से अभी तक उस बंदे से बात नहीं की, सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ। बंदा डेली फेसबुक पे मैसेज करता है, पहले आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया ना, मुझे नहीं पता 2 साल हो गए कसम से कि जिंदा है मर गया, ना वीडियो देखी, ना पिक्चर, ना आवाज सुनी। और आप लोग ये सोचो कि अगर आपके घर का अगर कोई पेट भी हो ना, तो पेट रखा हुआ आप लोगों ने, मैं अपने भाई को उससे तशबीह नहीं दे रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर वो 2 घंटे घर से लेट बाहर हो जाए ना, तो मालिक को भूख नहीं लगती, वो भाग जाता, भाई मेरा भाई परिंदा घूम गया, मेरा भाई 2 सालों को मुझे नहीं पता कहाँ पर है भी कि नहीं, जिंदा भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे पता वो बंदा कौन है। जब मर गया उसकी जिंदगी है, जन्नत में जाए, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जिंदा है वापस मैं लाऊंगा उसको, नहीं आया वापस, वो बंदा जरूर वापस आएगा। कौन सा तरीका है यार, इन्वेस्टमेंट मेरे साथ ही जाके मेरे भाई को उठा लिया, और उस वक्त जब मेरी माँ मरी हुई है 10 दिन नहीं गुजरे, 10 दिन नहीं गुजरे मेरी माँ को मरे हुए। मेरा ये भाई मेरे बाप के साथ हॉस्पिटल में पड़ा है, बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, ये भाई से मेडिसिन लेने गया गार्ड के साथ, वहां से किडनैप कर लिया। कोई तरीका,
कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन, कौन सा मजहब, कौन सा ज़मीर ये दिखाता सिखाता किसी को? यहाँ पर था ना, मैं मर तो नहीं गया था। अगर मर जाता तो चलो आप मेरी फैमिली के पास जाते, वो मर गया नहीं पैसे मिले, फिर वो आपको शायद देते नहीं देते, क्योंकि वो दे नहीं पाते। पहले दिन बोला था 9 मार्च को कि पैसे सिर्फ मैंने देने, और कोई बंदा इस दुनिया में नहीं दे सकता, और वो बात मैंने प्रूव किया। पैसे मैं ही दूंगा, बाकी किसी ने नहीं दिए, ना कोई दे सकता। अभी भी आगे चैलेंज लगा, कुछ भी कर लो, पैसे तब मिलेंगे जब वो इस सर्कल में आगे बैठेगा। चाहे वो जो बंदा जिसने किडनैप किया हुआ है, वो कोई भी है, वो इधर आके बैठेगा आप लोगों के साथ, पैसे मिलेंगे। नहीं बैठेगा, नो प्रॉब्लम, फिर मैं आप लोगों को डील करने के साथ उसके बाद उसके साथ डील करूंगा। तो ये लॉसेस में कभी रिकवर नहीं कर सकता। अगर उस बंदे को पैसे मिल भी जाते हैं, चले मेरा दिल टूट गया, मैंने पैसे दे दिए, मेरे भाई का 2 साल कौन देगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। मैट्रिक में पढ़ता था, उसके साथ के लड़के आज FSC कर रहे हैं, और वो पता नहीं कौन से जंगल में पड़ा होगा कि भी नहीं होगा, रब जानता है। वो 2 साल कौन देगा? तेरे कितने पैसे थे बेवकूफ? $2 मिलियन मैक्सिमम, 2 मिलियन भी नहीं थे। 50,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू की, हमने बना के दिए, अभी भी आगे बैठ चल नहीं कर रहे। फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे, जो सब उसी में इंटरेस्टेड हैं। अभी तो हम लोग रिकवरिंग डेटा कर रहे हैं सबका, क्योंकि आप लोगों ने देखा हमारे डेटा बहुत नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी क्लाइंटों को SMS नहीं मिला। हमारा जो सर्वर था क्रैश हो गया ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम एक वर्कशॉप बनाएंगे छोटी सी, उसमें हम लोग आप लोगों के पैसे और हर बंदे को प्रॉफिट भी मिलेगा। और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो प्रॉफिट इतना मिल जाएगा कि अगर यही इन्वेस्टमेंट आप पूरी जिंदगी के लिए करें, आप लोगों को प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। तो डेट में से आई कैन गिव यू डेट नाउ, मगर मुझे नहीं पता डेटा रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज छोटे क्लाइंट नहीं, आप लोग काफ़ी हैं। हम एक ब्रिक्स बना रहे हैं, पुराना कोई भी नहीं खड़ा है इधर, 1-2 ही खड़े हैं, बाकी सब नए हैं। तो आपको पता है, इतना तो समझते होंगे यार, शुरू करने में फिर हर चीज़ को इकट्ठी करने में, एक ईंट लगा के घर बनाया था, तोड़वा दिया लोगों ने, फिर बनाऊंगा, फिर कोई तोड़ने की कोशिश करे उसको फिर यही जवाब मिलेगा, और फिर बनाऊंगा। आई कम फ्रॉम द APS स्कूल, जहां पे हमें हार नहीं सिखाई जाती। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में एजुकेशन हासिल की है, वहां पे हमें ना कभी बैकअप सिखाया गया, ना कभी हमें क्विट करना सिखाया गया, ना कभी हमें गिव अप करना सिखाया गया। सिर्फ सिखाया गया द बेस्ट वे टू एस्केप योर प्रॉब्लम्स इज फेस दैट, और वही मैंने किया, और आज सबके सामने खड़ा हूँ और फख्र से कह सकता हूँ कि आपका पैसा आज वापस कर दूंगा। कोई एक कंपनी बता दो मुझे, पूरी दुनिया में 204 कंट्रीज में एक कंपनी बता दो जिसने कोलैप्स किया और उसने वापस इन्वेस्टर को पैसा दिया हो। एक कंपनी, किसी ने नहीं किया। पहली एमएमए है, वो भी आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से जो आपको आज पैसा वापस कर रही है। जो इन्वेस्टर्स, जो कंपनीज लॉस करती है ना फॉरेक्स में, एक मैं आपको और न्यूज़ देता हूँ, शायद नहीं पता होगा, सब कंपनीज इंश्योर्ड होती हैं, सब कंपनीज। अब एक बहुत बड़ी कंपनी हुई थी लास्ट ईयर, पूरी इंश्योर्ड थी, $40 मिलियन क्लाइंट्स का खा गई, सॉरी लॉस हो गया। और यहाँ पर तो जितनी कंपनियाँ गोल्ड सूक में, ये हमारे थोड़े भी 1-2-4 लोग यहाँ से छोड़ के गए, हम लोगों ने बल्कि खुद निकाला है, उन्होंने आजकल कंपनियाँ बनाई हुई, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। बहुत 2-3 कंपनीज हैं यूएई में जो फॉरेस्ट की रजिस्टर्ड कंपनी है, बाकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। घर पे फ्लैट में बनाया हुआ है, चेक्स लेके काम कर रहे हैं, और कोई कंपनी कई भाग जाती है यार, कई हमने तो अपनी भी देखी है, पैसे लेके लोगों को जाता हुआ, कोई वापस नहीं आता। आप सबको दोबारा बुलाया जाएगा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, उसमें आप लोगों को डेट दी जाएगी, और उसमें आपको आपके पैसे, प्रॉफिट सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद जिसने आगे कंटिन्यू करना है, मोस्ट वेलकम। जिन्होंने विड्रॉ करना है, दे आर ऑल्सो ऑलवेज वेलकम। हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, हैं और रहेंगे, और उसी में हम लोग आगे फिर अपनी सारा करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस द टाइम, एंड रियली अगेन apologize for all what we did in the past. Now if someone have questions and answer, please give them a mic. Anyone want to have question, please raise your hand. Here. Please
ज़रा साइलेंट रखिएगा ताकि इजीली सबको मिलेगा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं सर। प्लीज़ ये बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा। सुनाइए। आज से 6 महीने पहले मैं पाकिस्तान में था। जी जी। मैंने उधर भी कोई 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। 1 करोड़ रुपया होल्ड द इन्वेस्ट, माइक प्लीज, कैन यू होल्ड द माइक। 1 करोड़ पहले 1 करोड़ रुपया उधर इन्वेस्ट किया था। 6 महीने पहले मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, FI उन्होंने मुझे कॉल किया, मिस्टर आबिद मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैं तो 40 साल से बाहर बैठा हूँ, मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? या आप मुझे मिले। वो FI का असिस्टेंट डायरेक्टर आया, एक को मुझे उठा के अपने ऑफिस ले गया। उसने कहा तुमने इन्वेस्टमेंट की थी इनके साथ, कि तो कैसे की थी? तो बोले ये मीडिया में आया था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरी कोई $4 लाख दुबई में इन्वेस्टमेंट है और कोई 1 करोड़ रुपये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। 2 महीने उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे कहा ये जिस बंदे पे आपने इन्वेस्ट किया है वो ड्रग्स का काम करता है, वो एमुनेशन का काम करता है, मुझे धमकियाँ दी। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा उस पर हमने अपना, मैं 60 ईयर का हूँ, मैं ज़रा गर्म हो गया। उसके बाद उसके दूसरे बंदे ने मुझे कॉल की, आप उनको 1 लाख रुपया दे, आपका इसके बाद आपको लिए आपको कॉल नहीं करें। तो इस किस्म की रूमर्स उधर फैली हुई। नहीं, वो केस बना था हम पे, FIA उन्होंने बनाया था, द सेम वर्ड यू यूज, बट हम लोग उसमें 20 दिन पहले बरी हो चुके हैं। वो केस खत्म हो चुका है। मेरा ड्राइवर पकड़ा था उन्होंने, 15 दिन रखा, बरी हो गया वो लड़का उसमें से। वो मुझसे बल्कीस के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बल्कीस शी वाज ऑफिस असिस्टेंट, शी स्टिल आवर स्टाफ। मैंने वो तो ऑफिस में काम करती थी। तो आपको किधर है वो किधर, हमको उसे चाहिए, आपको पता होगा किधर है। जापान में पकड़ गया। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। दिस केस एंड वी ऑलरेडी विन दैट केस। मुझे ये जो आपने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया, यही चार्जेस थे मेरे ऊपर, बट सिर्फ चार्जेस थे, कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपने बोला कि हम चाहें तो विड्रॉ कर लें और चाहें तो विड्रॉ कर लें और चाहें तो कंटिन्यू कर लें। तो व्हेन यू से कंटिन्यू, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से रहेगा चीज़ों का? वो इंशाल्लाह बताएंगे। वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो सारा प्रोसेस होगा। अभी हम तो एक अपना अच्छा सेटअप बना रहे हैं। आप सबको मास्टर कार्ड दिया जाएगा। कल भी मेरी मीटिंग हुई है, तो डेबिट टू योर, क्योंकि ये डेली ऑफिस आना जाना, बैंक से डिपॉजिट करना, नाउ वी कांट डू इट एंड वी कांट गिव दोस सर्विसेज एज मच एज वी डिड बिफोर। मास्टर कार्ड बना के देंगे। जो लोग हमारे साथ रहेंगे, जो चले जाएंगे, वो अपने हर महीने जाके मास्टर कार्ड से खुद विड्रॉ करें। इसका डेबिट कार्ड होगा, उनका अपना हिसाब होगा। दे चार्ज यू सम $10 पर मंथ। आई कैन थिंक एवरीवन कैन पे, सो एवरीवन विल रिलैक्स इन देयर होम। खुद ही हर महीने 5 तारीख को जाके अपने पैसे निकालते हैं। आई हैव एडिशनल एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या ख्याल है इसमें कितना टाइम लग जाएगा? जस्ट बॉल पार्ट फिगर। फिर मैं यहाँ पे वर्डिंग लेके जाऊँगा, कल आप लोगों ने फिर मेरा गिरवान पकड़ना। नो एनी रमजान के बाद बताऊँगा, एक डेट दूंगा। सो देयर इज सॉरी टू से देयर इज नो डेट राइट नाउ, बिकॉज हमें नहीं पता कि डेटा रिकवर करने में रमजान के बाद डेटा कवर हो जाएगा। उसमें मैं आपको डेट दे दूंगा कि अगले डेट पे आके अपने अपने जो पैसे लेने आप लेंगे। थैंक यू। प्रॉफिट जो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्वेस्टर फोर्थ हो चुके तो उसके लिए आपका क्या, कैसे वो उनका हमारे पास बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिशियरी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और सॉरी टू हियर, कल कोई हो चुके हैं फोर्थ, अल्लाह ने जन्नत में जगह दी। एक है हमारे कुलीग थे, नहीं उनके जो बेनिफिशियरी हैं, जो उनके फॉर्म में लिखे हुए हैं, दे कैन कांटेक्ट अस। अदरवाइज दे आर नॉट इन दिस कंट्री, वी विल कांटेक्ट देम वेयरएवर दे आर। क्योंकि हमारा भी फ्यूचर में ऑफिस बन रहा है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी काम शुरू है, मुंबई में मरीन ड्राइव पे हमने काम शुरू कर दिया है, फिलीपीन, मलेशिया में हमारा ऑफिस ऑलरेडी रेडी हो रहा है, कुलालमपुर में। इस्लामाबाद, मुंबई और मलेशिया में हमारा काम ऑफिस शुरू हो गया। तो आप इंशाल्लाह जहाँ के भी वो होंगे, आपको तुमसे कॉन्टैक्ट। लेकिन वो रहते अबू धाबी नहीं है, अगर वो कैसे कांटेक्ट करें और कैसे वो जान सकते हैं? उनके हो पास सकता है कि उनको ना पता हो, डॉक्यूमेंट्स है ना, ये पूछना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स हुए। अगर नहीं भी हुए तो जब हम अपना डेटा बनाएंगे, एक्सक्यूज मी यार 2 मिनट प्लीज, जब हम उनका डेटा बनाएंगे, जब हमारा डेटा बनेगा, जो कांटेक्ट नहीं कर रहा तो हम उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे भाई। अगर उन्होंने कोई लीगल इशू हमारे साथ ना हुआ तो, नहीं लीगल इशू हुआ तो फिर वो हमारी लीगल टीम है, दे विल डील विद इट। वली साहब, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सर्कमस्टांसिस में भी आप सामने आए हैं मीडिया के सामने। अनफॉर्चुनेटली मैं वो इन्वेस्टर हूँ जिसने सिर्फ 1 महीना प्रॉफिट लिया, लेकिन मैं अभी भी बहुत एंथुसियास्टिक हूँ और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप थैंक यू सो मच। हेलो, अच्छा भैया, मेरे 5 बंदों ने, मेरे दोस्तों ने इन्वेस्ट किया।
पिछले 4 जा चुके हैं, उनकी पावर टर्नी मेरे नाम पे। अभी वो 4-5 पावर अटॉर्नी हमारे पास नहीं, हमें सिर्फ उनका बेनिफिशियरी चाहिए। बेनिफिट आपके पास है, हाँ, देन नो प्रॉब्लम, वो मेरे नाम पे है। वो भी इस कंट्री में नहीं है, अगर यानी है तो है ना, है वो है, तो नो प्रॉब्लम, मिलेगा उनको। नहीं भी वो फिर भी मिलेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। नहीं अगर उन्हें दोबारा लेटर चाहिए साइन हुआ तो वो कुछ भी अगर बेनिफिशियरी में आपका नाम है हमारे मेरा पास, नाम है। आप ही प्लीज बाय को दीजिए। भाई मुझे आपसे पूछना है कि जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था, बट मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो पूरी नहीं है। जो स्लिप्स थी, जो डिपॉजिट स्लिप्स थी, वो मेरे पास पूरी नहीं है। तो क्या आप लोगों के डेटा में मेरी पूरी अमाउंट रहेगी या सिर्फ उस बेस से मिलेगा जितनी मेरे पास स्लिप्स हैं? नहीं नहीं, हमारे पास है, मगर रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप समझ सकते हो 3 साल गाड़ी को खड़ा कर दो तो उसके अंदर काम नहीं करता। बिल्कुल, वो है हमारे पास, we will get those. अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉन्सिक्वेंसेस में आप निकले हैं या जिस तरह आपने फाइट की है या जिस तरह आपने कम बैक किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उन इन्वेस्टर्स में से हूँ जो 1.5 साल तक प्रॉफिट लेते रहे। यानी मैं सबको ये ओरिजिनल बताना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ ये काफ़ी अच्छे से रहूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड है कि आप हमें बता रहे हैं कि आप ईद पे बुला के बताएंगे सबको। ईद पे नहीं, ईद के बाद। ईद के बाद, सॉरी, ईद के बाद बुलाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप 3 साल का प्रॉफिट कैसे शेयर करना चाहेंगे? मसलन आप इनिशियल स्टार्ट करेंगे कि भाई हम आपको इसी महीने से देना चाह रहे हैं, या आप पिछले साल का जो अभी हमें तो नहीं पता आपके लॉस कितने हुए हैं और आपने पैसा कितना बनाया उसमें से, आप उस 3 साल को कैसे जज कर रहे हैं? यानी आप प्रॉफिट 3 साल का देंगे, 1 साल का देंगे, या उसी महीने का देंगे? या प्लीज कैन ये एक्सप्लेन कर देंगे, मैं सारे ये पूछना चाहेंगे। आप अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक हमारे लॉसेस का ताल्लुक है, वो पहले भी हमने बेयर किया, अभी भी बेयर कर रहे हैं। आप लोगों को इतना प्रॉफिट दे दिया जाएगा कि आपको मैंने कहा ना, अगर आप यही प्रॉफिट किसी और कंपनी में या किसी और बैंक में जाके इन्वेस्ट करते 10 साल आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पहले मैं कह चुका हूँ, इतना प्रॉफिट आप लोगों को देंगे। नूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। एंड खुदा आपको बड़ी हमारी सबकी दुआओं की वजह से आप इधर हैं, और खुदा आपको और प्रॉस्पर करे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक नर्स, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो मैं नर्स थी, और मैंने अपनी जो लाइक मेरे पास पैसा था तो वो मैंने जो है एमए में जो है वो इन्वेस्ट किया। और उसके बाद आप सब देख सकते हैं कि मेरे पे एक स्वेयर जो है वो प्रॉब्लम आ गई, मेरे हाथ में क्लॉट आ गए और मुझे स्वेयर स्ट्रोक हुआ, और मैं राशिद हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उस वक्त मैं हम सब पे भी, मेरी फैमिली पे भी बड़ा हार्ड टाइम था, एंड बिकॉज ऑफ एमए में भी स्टॉप हो गया था और कोई होप नहीं थी। थैंक गॉड्स कि मैं अलाइव हूँ, लेकिन अभी मेरे किसी भी अबू धाबी किसी हॉस्पिटल में मेरा वेस्कुलर डॉक्टर नहीं है, ओनली वेस्कुलर राशिद हॉस्पिटल में है। और बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग नाउ, आई नीड मनी, बिकॉज क्योंकि मैं 1500 की जो है मैंने मेडिसिन खानी है तो मैंने जीना है। बिकॉज मैं अगर पैरालाइज हो जाती स्ट्रोक की वजह से, लेकिन वही बात है ना कि वो पंजाबी में कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। खुदा हमारी दुआओं के सुनने से और सब दुआओं के वसीले से खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी है, और ये बड़ी एक आज होप जो है वो मुझे ख़ास तौर पे मिली है। और प्लीज़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक बिकॉज आई एम पेशेंट, रियली आई नीड राशिद हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिलने के लिए। जो मेरा वेस्कुलर डॉक्टर है वो सबसे एक्सपेंसिव है, मुझे वो मेडिसिन भी लेनी है और वो किसी फार्मेसी से नहीं मिलती। वही डॉक्टर देंगे, एक ग्रुप है वेस्कुलर सर्जन का, वही मुझे देता है और मैं खाती से लेती रहेंगी और आगे। और थैंक यू वेरी मच, ऑफिस में इंशाल्लाह और जीते रहो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आप, और दूसरा मैं सब आदमियों से यहाँ जो मौजूद हैं उनसे इल्तमास करूँगा कि आपकी वालदैन के लिए हाथ उठा के आवाज़ नहीं, मैं इल्तमास करता हूँ सब लोगों से जितने मौजूद हैं
कि आपके पेरेंट्स के लिए वो दुआ करें और आपको अल्लाह सब्र दे और उनको जन्नत में फिरदौस मिले। बाकायदा दुआ की है, फातिहा किया जाए सबके लिए। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط حفظهما العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب العالمين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. السلام بارك الله واغفر لي ونادر الناس وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه بحق محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. As you know that hope is very important and is everything for everybody. And we have lost our hopes. And today, again, you came out and raised our hopes again. So I would like to request you to stick with your promises which you have made today. And also I would like to send my condolences for your parents. It was very emotional and we do understand how painful it is for you and for anyone it could be. Thank you very much and we will be looking forward to your calls again. Thanks for the advice and my promise is whatever I said I did or between that some 2 SMS has been sent to you for come get some profit from our office and all that was just a misunderstanding between me and my staff and some people those who came to visit me for a couple of days suddenly. So I never promised anything. I always said from the very first day that only the profit and fund will be released once I will be out from the 9th March till 9th May 2016. I was saying the same words. I never said anything else and for that I am standing here. Otherwise if I didn't give my word and I wouldn't keep my words, I would have been flying in September somewhere else. Only because of my words and your love, your group's love brought me here.
Thank you very much. That's what I said. We are hoping again. That's all I can say. Before your hopes got down because of some of your own friends, some of our own family members. I never let's make you down your hopes. I came back, spent 3.5 years to just keep your hopes, and because your fund was with me, that's it. Next please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा कमेंट सेशन बन गया, तो उसी में मैंने सोचा वो एक बंदा बीच में आपके साथ खड़ा है। आप तो 3 साल 6 माह अंदर थे। He was the only guy who was responding to everyone. I would really love to salute him. He was the one. You know, हमारे पैसे, सारी बात है, हम कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं है, सारे सभी सैलरीड पर्सन्स हैं। किसी ने बैंक से उठा के, किसी ने सेविंग्स, कुछ। एक सेकंड, आप ये बात यही काटूंगा। बैंक से जिन्होंने उठा के पैसा दिया खुद गलती की, लोन लेके दिया खुद गलती की, अपने मतलब बच्चों की एजुकेशन के पैसे दिए खुद गलती की, क्योंकि मैं सबसे नहीं मिलता था, मगर मेरा फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ था कि प्लीज डोंट इन्वेस्ट मनी यू बोरो और द मनी यू नीड इन अर्जेंसी। क्लियरली पैराग्राफ 3 पेजों पे। किसी ने भी लिया वो गलती की। अगर मेरे स्टाफ ने गलत गाइड किया वो भी उनकी गलती। उसके बाद आपको एक एग्रीमेंट दिया जाता है, कॉपी, प्लीज रीड इट। 2 दिन पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, आई वुड लाइक टू टेक हिम हिज नेम इज एज वेल, मे बी इज हियर, मीर शबीर। बहुत उन्होंने मुझे तंग किया फेसबुक पे, बहुत ज्यादा, जब मैं अंदर था। ठीक है, बड़ी बात है, पता नहीं क्या क्या, बहुत लगे रहे वो बैठे हुए। तो उस दिन मेरी बात हुई 2 दिन पहले, आखिर तंग होकर मैंने कॉल की उन्हें, यार क्या है बताओ प्रॉब्लम क्या थी, कि भाई मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी ही नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं ली? ट्रस्ट था। तो मैंने कहा वो ट्रस्ट ट्रैश हो गया। तो ट्रस्ट था तो अभी तो मैं आ गया हूँ। एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं ना कि आप, मैं आज आपको पहली दफा देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम आल्सो अमंग दोस गाइस हु जस्ट टुक 1 month's प्रॉफिट। सो मैंने आपको आज पहली दफा देखा है। सो दिस इज द गाय। प्रॉफिट कितने महीने, कितना प्रॉफिट लिया आपने? 10%, 12%? 10%। 10% divided by 3, this goes for 3 years from any other bank. Yeah, exactly. You didn't lose anything till now. But you know what? This is what you are saying, that you are advertising 3 million, 10 million, 15 million. So that was the impact actually, that you are advertising that we are paying this and this, right? So that was the impact. We stand with you. No, but that I really appreciate, and for that stand I am here right now. But on that point that someone took from loan from bank, or someone invested his kid's salary, someone invested his mother's medications, that's wrong. You shouldn't do that thing. You should know the investment should be the money you have extra money like savings, या आपने रखनी है अपने फ्यूचर के लिए, वो इन्वेस्ट की जाती है। कभी नहीं उठा के जब मुझे रात में पैंडों की गोली चाहिए 2 dirham की और मैं 1 dirham जाके की लगा दूँ, ये गलत है। ये किसी भी सेंस में दिमाग में नहीं आती ये बात। बैंक से लोन लिया आप लोगों ने, मतलब बहुत से लोगों ने, ये क्यों लिया भाई? बैंक से लोन लेके हमें दे दिया, बाद में मुझे भी एक दो हमारा क्लाइंट है मुझे अंदर मिला पुलिस स्टेशन में, मेरा लोन था, मैंने यासीन मिर्जी। तो मैंने कहा भाई क्यों लिया? आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने कहा यार आपके पास एग्रीमेंट है? कहता हाँ। मैंने कहा पढ़ा उसमें, पढ़ा। मैंने कहा फिर क्यों ये काम किया? बस अच्छा प्रॉफिट था। तो मैंने कहा जब इतना प्रॉफिट लिया 6 महीने तो पे क्यों नहीं किया वापस? भाई 7% तो मिल गया ना, वापस पे कर देते। वो क्लाइंट की अपनी गलती है। हाँ, ये 2 लड़के खासतौर पे अली एंड जानियाल, बहुत इन्होंने आप लोगों की गालियाँ बर्दाश्त की। मैं तो ऐसे कहूँगा, नहीं सीरियसली बहुत बेइज्जतियाँ बर्दाश्त की, सब कुछ किया। नहीं, they did everything, जो इनको होता था इनको बोलते थे। अच्छा गाइडेंस दिया सर। That's what actually I am saying. तो आपको तो अप्रिशिएट करते हैं कि आप immediately appear हुए as soon as you came back, but we really appreciate these 2 guys as well. Thank you. और एक और इन्वेस्टर को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बगैर नाम लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया कि नाम नहीं लेना। I really want to say thanks in front of everyone, and he is a doctor. ये बता देता हूँ, शायद पहचान जाओगे कि उन्होंने मुझे उस वक्त साथ दिया जब मुझे बहुत सख्त साथ की ज़रूरत थी। और एक कॉल मैंने भी नहीं की, डैनियल ने कॉल की और उन्होंने मेरे साथ स्टैंड किया। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो, कॉल मी, ऑलवेज देयर। उसी एक दफ़ा 3 साल 6 महीने मुझे एक दफ़ा एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो एमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई। कॉल दैट गाय, फ़ोन नहीं उठाया। पहले बड़ी नारे तारियां, मैं ये कर दूंगा, मैं आसमान से तारे उतार लाऊंगा। वो एक बंदे को मैं स्पेशली आई वांट टू बी बेंड इन फ्रंट ऑफ हिम कि उसने मेरी हेल्प की,
and I promise him that I will never forget his help at that moment. Thank you for especially helping me at that moment. I think it's enough. Pasina mujhe bahut aa gaya. Just one last question, Mr. Malik. Only 3 questions more, please. Excuse me, Mr. Malik. Give them my mic, please. Bring him mic. Yeah, please go on. Mr. Malik, good evening, and thanks a lot for coming back. And it is really good to see you out here. And I must admit that Mr. Ali, he's been really supportive. I'm certainly here, Mr. Ali. So he's been really supportive. More than you, I must be really thankful to him that he has lots of patience and he's always kept a good customer service in his mind. But I would really like to know what is it that you are doing in terms of customer service, because we really fail to get back to your offices. We really fail to. The office is reopened. The same office on my tower 1501 is reopened, but it will be active next week, not this week, next week. You're most welcome. But staff online is active. But the real office in my tower, same office 1501 जो हमें बंद करवा दिया गया था, हमने खोला उसको दोबारा. Please. Malik, we never ever thought chance to see you. If you think you are out today because of your contacts or money, I don't think that may be a reason, but it is definitely prayers of hundreds of people who are sitting over here. All of us, each one of us prayed for you when you were inside or when you were in bad times. And me along with my colleagues, we have invested almost nearly 2 million. And I am very happy to know that our money is safe, very good. And soon we are going to get back our profits. And one last question, you just answered the further question that the office will be open very soon. In my next week, the office is already open, but we need to finish our legal. So we can start visiting your office. Yeah, you can. Okay, thank you. Thank you guys. Thank you for coming. See you guys in office. Thank you so much, everyone. The dinner is ready. Please enjoy the dinner. And one more thing, party abhi shuru hui hai.